Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, today we are starting the exercise number 15.2 and today's exercise we are going to do the questions of this particular exercise. So let's start with the first question students. What is that? Use isometric dot paper and make an isometric sketch for each of the following shapes. Right students? We have the given shapes to us, right? And you have to make the isometric sketches with the help of these isometric dot sheets, right? And you have to make this kind of shape on this kind of isometric dot paper, right students? Now have a look, this is a cuboid, it is having length of 6, right, units we can say, 2 units and 3 units are the dimensions, like it has 6 into 3 into 2, right students, it has such dimensions. So firstly we will be starting with this 6, right, the length. Right students, it is 6, so we will have to join 6, like if this is for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, right, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dots are there and I have connected these 7 dots so that I can have these 6 units, like this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right students. Now I'll have to make this 2 here as 2. 1, 2, right students, here also 1, 2, right. Now I have to join these 2 lines, dots, right. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is again 6, right students. So now I have made this kind of structure. Now I have to make this 3, this portion 3. So 1, 2 and 3, done with the 3. Similarly I have to make 3 here. So 1, 2 and 3. Right students, now I have to join such that it has 2 units, right. So it is 1 and 2, 2 units. I have made 2 faces, right students. Now on this particular portion 3 units, for example 1, 2 and 3, 3 units done, 1, 2 and 3, 3 units done, right, and 1, 2, 2 units. Clearly it is 2, this is 3, this is 6, this is 2, this is 3. Alright students, now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Again 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right students, and this is 6. Clearly in front of you all, we have drawn the isometric sketch. I think now it's visible to you all. Right, and this is the isometric dot sheet of the following dimensions 6 cross 3 cross 2. Alright students, now students will look at this particular picture. We have to make these things up. So firstly this 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right. Now students, after this 8 you have to make this 2 up, 1, 2, right. I have drawn this thing. Now it should also be 2, 2. This should also be 2, 2, right. Now this should be joined, I have joined these, right. Now it should be 3, from here it should be 3, I have drawn this. This should also be 3, I have drawn this. Now make them meet, right. Now this should be 2 students, okay, this should be 3, right. Again this should be 2 and this should be 3, meet them up, ठीक है. अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ तक हमने बना दिया. अब ये यहाँ से पॉइंट से निकल के ये कितना बन रहा है 2, ठीक है. और ये भी इसके सिमिलरली जो ये वाला पोर्शन है ये भी इसके साथ पैरेलली जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे 2, ऑलराइट, फिर इधर से ये 2 जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 जाएगा, फिर ये यहाँ से ज्वाइन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब ये जो चीज़ है वो इधर से मीट करेगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आइसोमेट्रिक आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है ना, ये जो चीज़ थी ये इस पॉइंट से मीट करने वाली है और ये वाली चीज़ इस पॉइंट से मीट करने वाली है, राइट स्टूडेंट्स. ये आपकी इस तरह की स्ट्रक्चर बनने वाली है, ठीक है. एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर. लुकिंग इन द नेक्स्ट पिक्चर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. दिस इज पार्ट 3. अब हमें ये चीज़ ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1 1 का है, ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल अब हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इसको, राइट, फिर इसको, अब ये 1 2 1 2, राइट, इसका कितना है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं बात कर रही हूँ इसके बाद 1, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, अब दिस इज 2, ऑल राइट, एंड दिस इज 1 2 3, दिस इज 3, right students, now this is 1, right, now this is again students, have a look, this is 1, right, this is also 1, right, now 1 2 1 2, right students, or now this is 1. So this is the complete isometric structure or sketch of this particular figure. Looking in the next question students, अब ये देखिए आपको ये ड्रॉ करना है इस पिक्चर पे, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है दिस इज 4, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज 4, हैव अ लुक, अगर ये 4 है स्टूडेंट्स तो ध्यान दो, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन 1 2 3 4, राइट, अब हमने ये वाला 4 बना लिया एंड दिस इज 2 1 2, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन 2, दिस इज ऑल्सो 2, this is 2 and this is 4, right, have a look students, now this is also 4, this is also 4, 1 2 3 4, right, make them join up, again 2, now students this particular, this is 2, this is also 4, 1 2 3 4, right, अब ये भी, अभी हम ये वाला ड्रॉ कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये वाला ड्रॉ कर चुके हैं, ये वाला ड्रॉ कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ना अब हम इन दोनों को भी मीट करवाएंगे, ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा, ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो चीज़ निकलेगी यहाँ से भी आपको 2 ड्रॉ करना है, 1 2, ठीक है, अगेन दिस इज 4, 1 2 3 एंड यहाँ पे कोई होगा दैट विल बी 4 और फिर ये 1 2, राइट, अब हमने स्टूडेंट्स ध्यान दो क्या क्या किया है इसमें, देखो हमने अब इसमें ये वाला लंबा वाला भी ड्रॉ किया है और ये 4 भी ड्रॉ किया है और ये वाला भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब इधर से 2 निकलेगा 1 2, ठीक है, इसके साथ इसको ज्वाइन कराया, ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन 4, ठीक है, अब अगेन 4 किसके साथ निकलेगा, देखो हमने ये लेंथ में निकाला था, अब इसके साथ यहाँ से 2 होगा, फिर 1 2 3 4, राइट, ये भी 2, अब देखो ये कितनी चीज़ बना ली है, अब ध्यान दो, जो हमें ये लेटर्स बनाने को बोला गया था कितनी बनाई है, 1 2 3, जैसे ये वाला बना लिया है स्टेप हमने, ठीक है, सो बेसिकली 1 2 1 2 यहाँ तक हमने कंप्लीट बना लिया, जिसमें हमने ये लाइन बना ली, ये वाली 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसमें हम ये सब बना चुके हैं, 1 2, अगेन दिस 1 2 वी हैव ड्रॉन, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको 2 ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला बना लिया, अब यहाँ से 4 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 2 3, ठीक है, रख दूँ, 2 3 अगेन 4, फिर स्टूडेंट्स ये 2 आएगा ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं, 4 आ गया ना, फॉर एग्जांपल, अभी ये तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर फिर से दिखेगी, ठीक है, तो ये 4 हो गया हमारे साथ, फिर इसको ऐसे लेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप ज्वाइन कराओगे इसको, ठीक है, तो ये इस टाइप का फिगर आपको दिखेगा, और फिर लास्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे ऐसे करा के इसको ज्वाइन कराना है, ठीक है, इस टाइप का पिक्चर आपको मिलेगा इस आइसोमेट्रिक शीट पे। लुकिंग एट द नेक्स्ट पिक्चर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड आर 5 into 3 into 2. These are the dimensions students. Draw 3 different isometric sketches of this cuboid. तो अब हमें इस क्यूबॉइड के 3 अलग अलग तरीके के आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम 5 को बेस रख के चलें, ठीक है। सो हैव इट लाइक दिस, 1 2 3 4 5, राइट, हमने ये 5 बना लिया इसका, ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या लेंगे 3, 1 2 3, राइट, इसको भी 1 2 3, राइट स्टूडेंट्स, फिर से ये 5 1 2 3 4 5, राइट स्टूडेंट्स। अगर हमने ये बना लिया है, ये 3 है जहाँ पे ये 5 है, तो हाइट कितनी है स्टूडेंट्स 2, ठीक है, 2, देन अगेन 3 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स,
ये 3 हो गई ना. नाउ इधर भी क्या होगा, हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स इसका 2. ठीक है, 1 2 3 5. ठीक है, इसको हम ज्वाइन कराएंगे. अब इसको ज्वाइन कराएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ज्वाइन कराएंगे. नाउ दिस इज अ कंप्लीट क्यूबॉइड इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें ये 5 लेंथ है, 3 क्या है इसका, ये चीज़ है, और ये हाइट कितना है इसका 2. तो ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हमने 5 नीचे लिया है. अगर स्टूडेंट्स यहीं पे मैं 5 को लेंथ के रूप में लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5. ठीक है, और इसको 3 लूँ, 1 2 3. ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप में बनाया. और अब यहाँ पे ये चीज़ लूँ मैं 2, यहाँ पे ये 5 लिया, ये 3 लिया और ये 2 लेते हैं. ठीक है, तो अगर ये 2 भी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम, तो फिर भी क्या होगा, लेंथ कितना रहेगा 5 3 4 5 राइट. और स्टूडेंट्स ये कितना रहेगा 3 3 5 2 2 2. दिस इज द सेकेंड पिक्चर राइट, जिसमें भी इसके डायमेंशंस क्या हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2 हैं. इसमें भी इसके डायमेंशंस क्या हैं स्टूडेंट्स, 5 इंटू 3 इंटू 2 हैं. फर्स्टली मैंने 5 को एज अ लेंथ यूज़ किया, अब मैंने इसको हाइट यूज़ किया. अब हम क्या करते हैं, 5 को इस टाइप में यूज़ करके देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड स्केच के लिए हम क्या करेंगे, इधर 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5 राइट. अब पहले स्केच में देखिए इस चीज़ को हमने 3 लिया था, तो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं 2, और हाइट क्या लेते हैं हम इसकी 3. ठीक है, सो 1 2 3 इज द हाइट. फर्स्टली हमने ये वाला बना दिया रेक्टेंगल यहाँ पे राइट. और अब हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ को 2 लेते हैं. ठीक है, इधर से 2 गया है ना, सो दिस इज 2 राइट. अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखो, देखिए 2 है, ये अगेन 5 और राइट 5 और 5, दिस इज 2, यहाँ पे भी 2 हुआ. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 हो गया फिर से राइट. अब स्टूडेंट्स ये क्या है, 3 है, ये क्या है 5 है, और ये क्या है 2 है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 फेसेस हम बना चुके हैं. अब इसकी भी हाइट कितनी रहेगी, 3 रहेगी ना राइट. अब देखो ये 3 है, अगर फॉर एग्जाम्पल हाइट हमारी कितनी है 3, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5. ठीक है, अगेन इट इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2. सो दिस इज द थर्ड आइसोमेट्रिक डॉट शीट डिजाइन आइसोमेट्रिक स्केच इन फ्रंट ऑफ यू. इसकी भी डायमेंशंस कितनी है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 3 इंटू 2. सो वी हैव मेड 3 types of isometric sketches with the same dimensions, right? Looking at the next question, students, the question number 3, 3 cubes each with 2 centimeter each are placed side by side to form a cube. अब हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स को, 3 2 सेंटीमीटर्स के क्यूब को एक साथ में प्लेस किया है ताकि वो क्यूबॉइड बन जाए. ठीक है, स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड. अब इसके अंदर आपको इसी क्यूबॉइड का ऑब्लिक स्केच भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अगर मुझे फर्स्टली ऑब्लिक स्केच बनाना हो, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑब्लिक स्केच स्टूडेंट्स, फर्स्टली मुझे ऑब्लिक स्केच के लिए इस टाइप की शीट चाहिए होती है ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस राइट स्टूडेंट्स. अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे क्यूबॉइड बनाना है किसका, 2 2 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स को रख के स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो मैंने क्या किया इस केस में, 1 2 3 4 5 6, ये एक फॉर एग्जाम्पल हम क्यूब बना रहे हैं. ठीक है, ये एक क्यूब हो गया, और हमें ऐसे कितने क्यूब्स रखने हैं, 3 क्यूब्स को एक साथ में रखना है. ठीक है, सेकेंड क्यूब कौन सा होगा स्टूडेंट्स बताइए, सेकेंड क्यूब होगा हमारे पास ये अगेन 2 सेंटीमीटर वाला, उसके बाद भी 2 सेंटीमीटर वाला. ठीक है, अब ये देखो ये 2 है, तो यहाँ से इसका ये गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर दिस विल बी लाइक दिस. ये सेकेंड वाला बन गया, और थर्ड वाला कैसे बनेगा, राइट स्टूडेंट्स. सो अब ये हो गया इसका ऑब्लिक स्केच राइट, जिसमें ये फर्स्ट क्यूब है. ठीक है, ये सेकेंड वाला क्यूब है, और ये थर्ड क्यूब है, जिसमें ये 2 2 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स हम साथ में रखे हैं ताकि हमें इसका परफेक्ट ऑब्लिक स्केच मिल जाए. सो दिस इज ऑब्लिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड इन विच वी आर प्लेसिंग 3 क्यूब्स ऑफ 2 2 सेंटीमीटर each together, right students? Now this is your oblique sketch. If I'm talking about isometric sketch students,
तो आइसोमेट्रिक स्केच में हमें पता है हमें डॉट डॉट्स लेने हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप की डॉट फिगर में हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें इसका आइसोमेट्रिक स्केच देखना है तो आइसोमेट्रिक स्केच में क्यूब इस टाइप में बनेगा ना। फर्स्टली स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ इस क्यूब की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ले लिया, फिर यहाँ से 1 2 अगेन हो गया, अब यहाँ से ये भी 2 और ये भी 2, राइट। ये तो हमने बना दिया एक क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, राइट। इधर से हमने क्या किया, फिर से ये से किया और फिर ये इधर मिलवा दिया। ये सेकेंड क्यूब हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली द थर्ड क्यूब जो हमें एक साथ में प्लेस करना है, ठीक है ना। अब ये सेकेंड क्यूब बना दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकेंड क्यूब है और ये थर्ड क्यूब है, जिनको हमने एक साथ में प्लेस किया है इस आइसोमेट्रिक स्केच के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन जो था जिसके अंदर हमें बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर्स के 3 क्यूब्स को एक साथ में लिख के हमें इनको ऑब्लिक या आइसोमेट्रिक स्केच दिखाना है एक क्यूबॉइड का, तो वो हम दिखा चुके हैं। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेट्रिक शेप्स। ये आपको आइसोमेट्रिक शेप्स दे रखी है। अब इस केस में हमने क्या करना है, इन आइसोमेट्रिक शेप्स का ऑब्लिक स्केच बनाना है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप से मतलब लाइंस वाला को चाहिए होगा, राइट। और इसके अंदर फर्स्टली आपको ये चीज होगा रिक्वायर्ड, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स का आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, इसका लेंथ, ठीक है। हैव अ लुक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर का, मतलब 2 यूनिट्स का बेसिकली, 1 2, राइट। सिमिलरली 1 2 3 4 1 2 3, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कितना लेना है, 1 2 3 4। अब आपको ये थोड़ा और ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको चाहे आप और ले सकते हैं लंबा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने ये 4 कितना ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेने के बाद मुझे यहाँ पे 2 लेना था, वो मैं ले चुकी हूँ। इधर भी 2 लेना था, फॉर एग्जाम्पल 1 और इसके बाद 2, ये यहाँ से भी 2 ले लिया, फिर यहाँ से 1 2। अब इनको ज्वाइन करा दो 2 को, ठीक है। अब 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, राइट स्टूडेंट्स। इधर भी 4 लेना है, 1 2 3 4, राइट। अब इनको ज्वाइन कराइए, ज्वाइन करा दिया। अब इधर से देखो 1 2, ये चीज़ चली गई। फिर यहाँ से भी जाएगा, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लेके देखो, ठीक है। अब इधर से कितना आया, 1 2, राइट। इधर से इसको ज्वाइन कराया, ये यहाँ से ये चीज़ बन गई। अब ये वाला बॉक्स बन गया। अब यहाँ से 2 चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 1 2। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कराया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 1 2 3 4, लॉजिकली ये 4 बनने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपके पास पिक्चर आई है ना, दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केच का यहाँ से हमने ऑब्लिक स्केच में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर पिक्चर एट योर होम यूजिंग दिस काइंड ऑफ चार्ट, राइट स्टूडेंट्स। ये आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है, सिमिलरली इस क्वेश्चन के सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको ऑब्लिक स्केच भी देखना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी देखना है, ठीक है। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 3 एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, फर्स्टली इसमें 5 3 और 2 सेंटीमीटर का कोई भी क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। ये तो हम कर ही चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, राइट। और इसको 2 ले दो, 2 इधर से और 5 इधर से, ठीक है। और 1 2 3 अगेन 5, 1 2 3 4 5, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ से 3, ठीक है, 1 2 3, राइट स्टूडेंट्स। अब 2 फेसेस बन गए। इसकी भी हाइट कितनी होगी, 2 होगी। अगेन 5, ये भी 3 होगा, ठीक है। ये भी 1 2 3, ठीक है।
ये हमारे पास आ चुका है एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशंस क्या है 5 इंटू 3 इंटू 2, राइट। सो दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केच स्टूडेंट्स। अगर मुझे यही स्केच बनाना हो ऑब्लिक में, ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी 5 सेंटीमीटर का देखो यहां से 1 2 3 4 5, बस इसमें लिख दो कि ये 5 है, ठीक है, और यहां पे 2 है, और इधर से लिख दो आप कोई भी ये 3 है। आपने लिख दिया कि ये 3 है कोई, फिर यहां से 5 लिख दो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप में आप कुछ भी बना सकते हैं ऑब्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। सिर्फ ऑब्लिक में आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, आइसोमेट्रिक में आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लुकिंग इन द सेकंड पार्ट, क्या है वो, अब आपको एक क्यूब बनाना है जिसकी एज कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो। 4 सेंटीमीटर एज का मतलब क्या है स्टूडेंट, सारी साइड्स उसकी 4 4 होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 4 1 2 3 4, यहाँ से हम पहले तो 4 का स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है। अब इस टाइप में बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली यहाँ से लेंगे, इस टाइप में क्यूब बनता है, ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल हम बना चुके हैं, तो यहाँ से 4 लो 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। अब ये चीज़ भी बना दी है हमने, ठीक है। अब यहाँ वाला भी बना दिया ना, फॉर एग्जाम्पल ये सामने वाला फेस बन गया, बैक वाला फेस बन गया। अब इधर से इसका हाइट लो 1 2 3 4 4 4 4, राइट, और यहाँ से 1 2 3 4 काइंड ऑफ दिस थिंग, ये एक क्यूब बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका एज कितना होगा 4 सेंटीमीटर। आइसोमेट्रिक शीट में भी स्टूडेंट्स आपको यही करना है, ठीक है ना, सेम बनाने होते हैं स्टूडेंट्स। अभी क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक दैट कि आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ले रहे हो आप, इधर 4 ले रहे हो, इधर 4 ले रहे हो, ये 4 4 4 हो गया। अब इधर से भी आप 4 ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी 4 हो गया, राइट। अब ये 4 होने के कारण यहाँ से आप लोगे, वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे करके कोई भी आप क्यूब बना सकते हैं जिसकी सारी एजेस कितनी हो, 4 हो। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 15.3. Till then students, do practice hard at home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day. Bye bye.